Okay, good morning, dear students. So let's start from where we have left. In the last class, I told you about the Valencian symbol of some common cations and anions, and I also told you that you have to learn them because if you don't learn them, it will be very difficult for you to make formula. So why it is important? Why we write a molecular formula? First of all, let's see the definition that a molecular formula is a symbolic representation. आप symbols लिखते हैं उसमें. It's a symbolic representation of one molecule. So whenever you are writing a formula, if I write H2O, now this represents a single molecule of water. So this is a formula of a compound, and what it shows that it is one molecule, and it shows the number of atoms present, 2 of hydrogen and 1 of oxygen. So that means total how many atoms are present here? 3 atoms are present. They will be always present in whole numbers of to form the molecule. So it will be 2 and 1. It will never be H 2.5 something like this. Okay, it will always be a whole number. So, and why we need this formula? It makes our it saves our time, and it makes convenient when we are writing, we are showing a reaction happening where multiple compounds are there. So it will be very easy for us to write the shorter notations, short form, rather than writing the full detail or in word the compounds. So let's see another example as given in your book, that if I represent sulfur dioxide, formula of sulfur dioxide gas is SO2. So it means this is one molecule of sulfur dioxide, and how it is formed? It is formed by one atom of sulfur and 2 atoms of oxygen. So total how many atoms are there? 3 atoms and 1 of sulfur and 2 of oxygen. So how do you write a chemical formula of a compound? What are the rules of writing? You already have studied this in class 7, but still we will revise here that how do you write a chemical formula. First of all, you should know the symbol of elements used. For example, if I same example I will take sulfur dioxide. So you should know that the symbol of sulfur is S, and the symbol of element oxygen is O. Okay, and then you will first step will be identifying the symbols of the element which are used to make the formula, and then you should know their valencies. आपको उनकी valency आनी चाहिए, and after that we will use the crisscross method. So let's start making the formula. This is the step-by-step method for writing the formula of some chemical compounds. So first example which I am taking is magnesium chloride. Now first, as I told you, on the first hand you should know the symbols of the element used. So first is magnesium. So I know the symbol is Mg. I am going to write it here. Then for chloride comes from chlorine. As I told you, the negative element changed their name. Chlorine becomes chloride. फ्लोरीन becomes फ्लोराइड, ऑक्सीजन becomes ऑक्साइड. तो जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो नेगेटिव रेडिकल है, वो हमेशा अपना नाम बदल के आता है कंपाउंड में. तो नेगेटिव जो होगा यहाँ पे, ये क्लोराइड है जो ये क्लोरीन से आया है, और क्लोरीन का सिंबल आपको पता है Cl होता है. नाउ सेकेंड स्टेप, एज आई टोल्ड यू शुड नो देयर वैलेंसीज, और आपको उसको क्रिस क्रॉस करके लिखना है. मतलब जो जिसकी वैलेंसी है वो उसके नीचे नहीं लिखनी है, वो दूसरे के नीचे लिखनी है. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो आप क्लोरीन के नीचे लिखेंगे, और क्लोरीन की वैलेंसी आप किसके नीचे लिखेंगे? मैग्नीशियम के नीचे. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? आपकी 2 है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, और क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है. यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है तो आप फार्मूला गलत बनाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बिकॉज दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू टू लर्न दैट टेबल ऑफ वैलेंसीज. अब जो जिसके नीचे लिखा है वो उसके साथ चला जाएगा, ये याद रखेंगे. सपोज at the bottom of magnesium, if numerical 1 is written, then what will happen? You have to consider that now magnesium has this number 1 attached to it and chlorine has this number 2 attached to it. इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस. इसकी वैलेंसी उसके ऊपर और उसकी वैलेंसी इसके ऊपर. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी विल गो ऑन क्लोरीन, एंड क्लोरीन की जो वैलेंसी है इट विल गो ऑन मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के साथ क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे 1, और क्लोरीन के साथ क्या लिखेंगे? क्लोरीन के साथ लिखेंगे 2.
वन हम कंसिडर करते नहीं हैं फार्मूला मेकिंग में, वन जहाँ भी लिखा होता है उसको हटा दिया जाता है। तो MgCl2 इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। जितना एग्जाम्पल्स देखेंगे हमें उतना ईजी रहेगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल विल बी कैल्शियम ऑक्साइड। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का आपको फार्मूला, आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो है आपका Ca। ऑक्साइड ऑक्सीजन से आया है तो O। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखेंगे, आप O2 नहीं लिखेंगे, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का सिंबल नहीं लिखना है आपको ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल लिखना है। वो जो 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में उनके जो सिंबल्स हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। तो O2 O3 नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ O लिखना है। और उसकी वैलेंसी क्या होती है ऑक्सीजन की? 2 होती है। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हम डालेंगे ऑक्सीजन के नीचे। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख देंगे, ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम की वैलेंसी लिख देंगे। अब यहाँ पे जो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ये 2 और 2 आ रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है, इसको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CaO। सो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज जिंक हाइड्रोक्साइड। अब आपको हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH होता है, ये रेडिकल में आएगा आपका जो नेगेटिव रेडिकल है। जिंक का फार्मूला Zn होता है। जिंक की वैलेंसी जो होती है वो होती है आपकी 2 वैलेंसी होती है जिंक की, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, तो वो जिंक के साथ चली जाएगी। तो Zn1 एंड OH। अब ये ध्यान रखेंगे रेडिकल है 2 तो उसको ब्रैकेट में करके 2 लिखेंगे। ये 1 यहाँ कंसिडर नहीं होगा तो फार्मूला बिकम्स ZnOH होल ट्वाइस। अब OH के साथ 2 क्यों लगाया? क्योंकि OH एक ऐसा रेडिकल है जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है और उस पर चार्ज था। तो यहाँ पे हमने इसको इसलिए ब्रैकेट में डाला है क्योंकि ये जो 2 है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोथ द एलिमेंट्स, तो तभी इसे हमने यहाँ पे डाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम का फार्मूला NH4 है, ये आप याद करेंगे। इसकी वैलेंसी नहीं है ये 4, ये हमने 4 यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये 4 इसकी वैलेंसी है, ये उसके सिंबल में ही है। NH4 जो है NH4 और उसका जो वैलेंसी होती है उसका चार्ज होता है प्लस, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 4 है ये इसके सिंबल का भी पार्ट है, उसके नाम में ही है 4, ऐसे समझ लीजिए। उसी तरीके से सल्फेट का भी नाम में ही है 4, तो सल्फेट में नाम में ही 4 है, तो इसलिए ये 4 हमने इसलिए नहीं लगाया कि उसकी वैलेंसी है। तो अब अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। तो अब देखेंगे लिखने का तरीका, चूँकि NH4 तो नाम में ही है तो NH4 तो पूरा लिख देंगे हम, और ये 2 यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चूँकि वो है रेडिकल है जो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल के 2 लगाएंगे। और SO4 के आगे 1 लगेगा, 1 कंसिडर करते नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। बाई चांस एक वो लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये 3 होता तो हम क्या करते, तो हम इसको ऐसे लिखते, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 को कंसिडर नहीं करते। तो ये याद रखना कि जो रेडिकल्स हैं जिनका जो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने, अगर उनके साथ हमें नंबर लगाना है तो वो नंबर हम ब्रैकेट में करके लगाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इस तरीके से आप अपने फार्मूला मेकिंग करेंगे। Some molecular formulas are given here in your book, you can see, so you have to learn them, okay। ये आपको लर्न करने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से अमोनिया एंड आयरन 2 सल्फाइड। और यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है ना एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप कॉपी में करेंगे। यू विल राइट the name of these compounds, but always remember that you have to use the criss cross formula। आप इसको बनाना मतलब इसी तरीके से criss cross से ही
बनाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नाम नहीं लिख देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें, देखिए एक एग्जांपल है आयरन 2 सल्फाइड, तो यहाँ पे इसका मतलब साफ है कि आयरन की वैलेंसी यहाँ पे क्या ली है, 2 ली है। तो आयरन और सल्फ़र से आया है सल्फाइड, तो आयरन की वैलेंसी भी 2 और सल्फ़र की वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कैंसिल, सो फॉर्मूला बिकम्स आयरन 2 सल्फाइड का ऐसे लिखेंगे Fe2S। तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे आपने आयरन की वैलेंसी क्या ली है, 2 ली है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न। ना व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, सबसे पहला जो उसका सिग्निफिकेंस है वो है सेव टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। आपका टाइम बचाता है, सो इट सेव्स योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। लेकिन और साथ में क्या करता है, सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला एंड यू नो द रेशियो, किस रेशियो में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स। तो H2O में 2:1, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन के रेशियो में प्रेजेंट है। देन यू कम टू नो द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 होता है, तो 2 एटम यहाँ यूज़ किए तो उनका मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो यहाँ पे 16 एक ही एटम है, तो प्लस 16, तो इट विल गिव यू 18 एटॉमिक मास यूनिट। ये उसकी यूनिट है आपके एटॉमिक मास की, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया 18 AMU। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल वेज 18 AMU। तो आपको क्या पता चल जाता है, आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता चल जाता है। इस तरीके से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। दे आर शोइंग द एग्जांपल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, हम उसका देखेंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास निकालेंगे। सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो है 32, एक ही है तो 32 अकेला रह जाएगा। ऑक्सीजन 2 हैं, तो 1 इज़ ऑफ 16, सो 2 विल बी 16 + 16, दैट इज़ 32. So the molecular mass of sulfur dioxide will become 64 AMU. ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। चूँकि बहुत स्मॉल है तो हम उसको ग्राम वगैरह में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको किस में मेजर करते हैं, एक अलग यूनिट में मेजर करते हैं जिसका नाम है AMU। एंड व्हाट इज़ दिस AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहाँ से आया है, इट इज़ एक्चुअली कंपैरिजन। किस चीज़ से कंपैरिजन किया गया है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के साथ उसका 1/12 निकाल के कंपैरिजन किया गया है, और इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ इन रिलेशन विथ कार्बन। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस। ओके, ये देखेंगे। सो एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास सिंस इट डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट। और वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो है कार्बन 12। सो एटॉमिक मास जो है वो आपका होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो याद रखेंगे इस चीज़ को। वो होल नंबर भी हो सकता है, वो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम फ्रैक्शन कैसे होगा, जनरली इसलिए होता है क्योंकि हम आइसोटोप्स का भी मास मेजर करते हैं। तो आइसोटोपिक मास मेजर करते हैं, इसलिए वैसा। तो मान लीजिए 2 तरीके का, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन 2 तरह से प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज, कितना क्लोरीन 35 है एक सैम्पल में और कितना क्लोरीन 37 है, बेस्ड ऑन दैट सैम्पल जब हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 35.5। तो देखेंगे डेसिमल में भी हो सकता है एटॉमिक मास। एग्जाम्पल इज क्लोरीन, एग्जाम्पल इज सोडियम। ठीक है, अब सोडियम तो 22.9 है तो उसको हम 23 कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन क्लोरीन को हम 35.5 ही लेते हैं। हेयर इज़ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विच यू हैव टू लर्न। ये आपको लर्न करना है, तो अच्छा रहेगा अगर आप इसको अभी लर्न कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। दिस एक्टिविटी यू विल बी डूइंग इन योर कॉपी। यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। आपको ये पता है कि केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, एंड दिस फॉर्म इज़ लाइक रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स ऑन द, ये स्पेलिंग गलत है प्रोडक्ट की,
product is on the other on the right hand side, and बीच में arrow आएगा. The arrow is actually, it means gives. So when reactants chemically combine, they give product. For example, burning of coal in air is a chemical reaction in which new substance carbon dioxide is formed. So whenever there is burning, it gives a chemical change. Let's see. Carbon burns in oxygen. A lot of heat is given to this reaction, and then carbon dioxide is formed. The chemical equation क्या है? It is a shorthand description of a chemical reaction. Shorthand मतलब using symbols. It saves space, time and energy. How do you write a chemical equation? First you have to write the symbol or the formula of the reactant on the left hand side, and you have to, अगर आपने 3-4 एलिमेंट्स लिए हैं, 3-4 कंपाउंड्स लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बीच में आप क्या साइन डालते रहेंगे? आप प्लस का साइन डालते रहेंगे उसमें. You will write all the compounds or elements which are on the reactant side with putting plus sign between them, and then on the right hand side you will put one arrow in middle, and this arrow means gives. So between reactant and product you will put an arrow, and then you will write the product also in the same way how you have written reactant. If there are more than one product, you will put plus sign between them. Let's see one example here. Lead monoxide and carbon will give you lead and carbon monoxide. So here are the reactants. PbO plus C will give you Pb plus Co. So this is the reaction. Again, second example, iron plus sulfur on heating gives iron 2 sulfide. So Fe plus S gives FeS. Okay, third reaction we'll see. Water plus carbon dioxide will give you hydrogen carbonate. So this is water, this is carbon dioxide, this is hydrogen carbonate. And how you will come to know that what is the formula of hydrogen carbonate? Because you will be making it through crisscross. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बोनेट का सिंबल CO3. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2. So you will get the formula H2CO3. तो आप उसका फार्मूला बना लेंगे. अगर आपको ये पता है कि क्या कंपाउंड बन रहा है जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा क्रिस क्रॉस. दैट इज़ व्हाई वी लर्न टू मेक फार्मूला. सो योर रिएक्शन विल ऑलवेज बी करेक्ट इफ़ यू नो हाउ टू मेक द formula. Now second example, fourth example, calcium oxide plus water will give you calcium hydroxide. So this is also, now here one thing you have to consider, इसको ध्यान से देखो कि जितने भी एटम्स LHS पे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उतने ही एटम्स RHS पे भी हैं. जैसे एग्जांपल कैल्शियम का यहाँ पे 1 एटम है, तो यहाँ पे भी देखो 1 एटम है. यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 + 1 2, तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 2 है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है. तो ये ध्यान रखना कि LHS इज इक्वल टू RHS हम करते हैं इसमें, ताकि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड. एंड व्हाई डू वी डू सो? We do so because we follow law of conservation of matter, which says that matter can neither be created nor be destroyed. It only changes it only changes, shuffles. एक शफल करता है. जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड अकेला था, है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन साथ में थे. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी साथ में आ गया, मतलब इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना लिया. तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको कि LHS में जो नंबर ऑफ़ एटम्स शुड बी इक्वल टू RHS. अगर ऐसा नहीं है तो उसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, और कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड नहीं हो सकती है. यू ऑलवेज हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन व्हेन एवर एंड वेर एवर यू आर राइटिंग. और दूसरी चीज़ आपको इसमें कंसिडर करनी है कि आप, जैसे जब हमने फार्मूला मेकिंग किया था तो हमने क्या लिखा था? हमने उसका हमने लिखा था एटॉमिक सिंबल, है ना, हमने सिंबल लिखा था, हमने 2 3 नहीं लगाया था, उसका एटॉमिक सिंबल लिखा था. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो आप उसका एटॉमिक सिंबल नहीं लिखेंगे, आप उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, यानी मॉलिक्यूलर सिंबल लिखेंगे. तो अगर मुझे वाटर बनाना है तो आई विल राइट H2 + O2 गिव्स H2O. ठीक है, आई विल नॉट राइट H + O गिव्स वाटर. दिस विल बी रॉन्ग. ऐसा क्यों? क्योंकि ये H इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, O इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो वी कैन नॉट राइट H and O. We always remember that hydrogen gas and oxygen gas combine to form water.
तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है H2 और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है O2। तो हम हमेशा उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरीके से देखेंगे हम H प्लस Cl गिव्स HCl, देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप बोलेंगे भाई एक H एक Cl एक Cl, सो इट इज़ बैलेंस्ड। नो, बट दिस इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोरीन भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H2 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl। नाउ दिस इज करेक्ट, अब करेक्ट है। लेकिन अब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन बैलेंस करके दिखा रही हूँ, वाटर वाली। ये देखिए, ओके तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप बैलेंसिंग करेंगे तो यू कैन नॉट पुट द नंबर एनीवेयर। कहीं किसी कंपाउंड के बीच में आप नंबर नहीं लगा सकते। जैसे वाटर एक कंपाउंड है H2O, इसका फॉर्मूला है H2O, तो आप इसके बीच में यहाँ कहीं नंबर नहीं लगा सकते या यहाँ कहीं नंबर नहीं लगा सकते। सिर्फ ये जो प्लेस है इसके आगे वाली, बस यहाँ पे ही नंबर लगा सकते हैं। तो हर कंपाउंड के सिर्फ आगे वाली जगह पे लगा सकते हैं अगर आपको नंबर पुट करना है बैलेंस के लिए, तो ये बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, H2 है यहाँ पे भी H2 है, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस। इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ। आप लिखेंगे LHS और आप लिखेंगे RHS, फिर आप लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं H और O, ठीक है। अब यहाँ पे LHS में हाइड्रोजन का नंबर लिखेंगे 2, RHS में लिखेंगे 2, ऑक्सीजन का नंबर 2 और वहाँ पे नंबर 1। तो यानी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। क्या बैलेंस करना है हमको? ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो हम इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है हमें, लेकिन हम ये नंबर यहाँ 2 नहीं लगा सकते, ये गलत है। नीचे नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही प्लेस होती है जहाँ हम लगा सकते हैं, वो है इसकी ये वाली प्लेस। ओके, तो हम अगर H2O2 बना देंगे तो ये तो कोई नया कंपाउंड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, हम सिर्फ यहाँ लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से फटाफट इसको हम 2 लगाएंगे। यहाँ हमने 2 लगा दिया। सो वी हैव पुट 2 हियर। जैसे हमने 2 यहाँ पे लगाया तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। देखिए 2 ये दिस 2 इज़ फॉर दिस, तो यहाँ पे बैलेंस है। लेकिन हमारा क्या बिगड़ गया? हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्योंकि दिस इज़ 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बिकम्स 4 ऑन दी RHS। यहाँ पे 2 ही है, तो अब यहाँ पे भी इसको 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब हमारा 4 हो गया। सो नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। ओके, अब क्या इसको समझ में कैसे आया कि अगर हमने यहाँ लिखा तो ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ? तो अभी मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बताती हूँ आपको। जब आप लिखते हैं 2H2O, अगर आपने ये लिखा 2H2O, तो इसका मतलब कि क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब जरा काउंट करेंगे इसमें हाइड्रोजन कितने? 2 + 2 4, सो 2 × 2 4। ऑक्सीजन 1 and 1 2, तो ये 2 इज़ फॉर दिस ऑल्सो। तो ये इस तरीके से जब हम इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो साइड स्क्रिप्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस थिंग। अगर यहाँ पे भी ये 3 होता मान लीजिए, तो ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 3 × 2 दैट इज़ 6। ओके, 3 × 2 6 हो जाता। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। सपोज इफ़ आई राइट 2H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। 2H2, ये फॉर्मूला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके आगे मैंने 2 लगा दिया, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो चलो इनको अलग अलग लिख के देख लेते हैं, H2SO4 और H2SO4। तो अब जब टोटल काउंट करें कितने हाइड्रोजन है? 2 + 2 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो हाँ 2 + 2 4 है। सल्फ़र 2 है, तो 1 हियर एंड 1 हियर, तो 2 सल्फ़र हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 + 4 8, तो इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा? 4 2s are
8। तो एक्चुअली वो सेम बस लिखने का तरीका है, इसीलिए इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग का एक एग्जांपल जो वाटर वाला लिया है। हम क्लोरीन वाला देखते हैं, HCl वाला फार्मूला, HCl वाला एग्जांपल देखते हैं। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब इसमें देखेंगे बैलेंस है या नहीं है। 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, यानी बैलेंस नहीं है। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद द सेम थिंग, हमारा LHS RHS। ये अभी शॉर्ट उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। एलिमेंट्स देखने के लिए आप सिर्फ LHS ही में देख लीजिएगा, जो एलिमेंट्स LHS में हैं वही RHS में होंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो वहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, जो यहाँ पे हैं वहीं वहाँ रहेंगे, बस उनका शफलिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, क्लोरीन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यानी आपको दोनों बैलेंस करना है। अब जब दोनों बैलेंस करना है, इस HCl ये कंपाउंड है, मैंने आपको बताया ना, इसके यहाँ कोई नंबर लग सकता है ना इसके यहाँ कोई नंबर लग सकता है। एक ही जगह है जहाँ नंबर लग सकता है और वो जगह है ये, यहाँ पे लग सकता है नंबर, है ना। तो कौन सा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या नंबर लगाएंगे, हम लगाएंगे 2। अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, now it is balanced. So the formula, the reaction becomes H2 plus Cl2 gives 2HCl। ये करेक्ट रिएक्शन है। H plus Cl gives HCl भी करेक्ट नहीं है, H2 plus Cl2 gives HCl ये भी करेक्ट नहीं है, लेकिन करेक्ट इक्वेशन क्या है, H2 plus Cl2 gives 2HCl। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। तो जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है उसको हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो स्केलेटन इक्वेशन कौन सी होती है, स्केलेटन इक्वेशन इज इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड, और यू कैन से वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। तो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बता दिया, ये आपको लर्न करना है। And why do we follow law of why do we balance? Because we follow law of conservation of mass or matter. And why these are balanced, one more reason, this is because a chemical reaction is just a rearrangement of atoms, and atoms themselves are neither created nor destroyed during the course of chemical reaction। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो है जहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे लिए क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। तो सबसे पहला हमें क्या पता चलता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, कि व्हाट आर द सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और क्या हमें उसका रिजल्ट मिला है ना, क्वालिटी क्या है। मतलब अगर इधर H2Cl2 था तो उधर हमारा क्या HCl आया है, तो हमें क्या पता चलता है कि व्हाट वर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। Then it shows both the number of molecules and the number of atoms of each type involved in the reaction. Yeah, I have already explained you. It enables us to calculate the actual amount. हमें mass of the reactant और mass of the product भी हमें पता चल जाता है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 2Ca है, तो एक Ca का अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो हमें 2Ca का भी पता होगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है तो हमें 2 का भी पता होगा, फिर 2CaOA का टोटल मास निकालेंगे, तो LHS का मास इज इक्वल टू RHS का मास। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज स्टडी है ये बैलेंस्ड इक्वेशन से हो पाती है। ओके, अब यहाँ पे इस रिएक्शन में देखेंगे एक एग्जांपल, यहाँ पे इन्होंने लिया है कैल्शियम, तो 2 कैल्शियम प्लस O2 गिव्स 2 कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हमें पता चलता है कि कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग, है ना, और क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्मिंग। फिर क्या पता चल रहा है, 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम कंबाइंड विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फिर हमें क्या पता चलता है, एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, तो 2 का कितना होगा 80, ऑक्सीजन 1 का होगा 16, तो 2 का क्या होगा 32, तो 80 प्लस 32 ये हो गया हमारा टोटल रिएक्टेंट का मास, दैट इज 112। अब 2CaO का मास निकालोगे वो भी हो जाएगा कितना, वो भी हो जाएगा 112। सो दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है, तो बैलेंसिंग मैंने आपको बता ही दी है और अभी हम बैलेंसिंग के एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, सो विल अंडरस्टैंड बेटर। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट दे हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वर्ड इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। नाउ यू शुड नो द, सबसे पहला रिएक्शन लिखने के लिए यू शुड नो द फार्मूला। तो मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का गैस है यहाँ पे तो O2 लिखेंगे हमेशा, है ना, जो भी उसका मॉलिक्यूलर है वो लिखेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बना लेंगे अगर नहीं पता है तो जल्दी से क्रिस क्रॉस करके Mg और O, फिर Mg का 2 और O का 2 से 2 कैंसिल, सो वी गेट द फार्मूला एज MgO। अब देखेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं है, तो वही LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इधर 1 इधर 2 उधर 1 उधर 1, यानी बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम नंबर नहीं लगा सकते हैं, यहाँ नंबर नहीं लगा सकते हैं, एक ही जगह है जहाँ नंबर लगा सकते हैं वो ये है। तो यहाँ पे 2 हमें ऑक्सीजन करना है, तो वी विल राइट 2 हियर। ओके, तो नाउ ऑक्सीजन बिकम्स 2 बट मैग्नीशियम ऑल्सो बिकम्स 2, फिर इम्बैलेंस्ड हो गई। अब हमें इस मैग्नीशियम को 2 करना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, सो द reaction becomes 2Mg plus O2 gives 2MgO. So this is the correct balanced equation. Let's see another example. So let's see another example. Iron 2 plus hydrochloric acid gives iron 2 chloride and hydrogen. Iron 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 लेनी है हमें। चलिए तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं, सबके सिम्बल्स लिख देते हैं। आयरन की वैलेंस, आयरन का सिंबल Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, और आयरन 2 क्लोराइड का कैसे बनाएंगे, फिर हम क्रिस क्रॉस करके बना देते हैं। Fe और Fe का यहाँ पे 2 लेना है और क्लोरीन का यहाँ पे 1 लेना है, तो फार्मूला बिकम्स FeCl2 और हाइड्रोजन का H2। ठीक है, तो ये हमने बना ली अपनी स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन हमारी बन गई है। अब जल्दी से LHS और RHS कर लेंगे हम। तो Fe1 उधर भी 1, H इधर 1 उधर 2, क्लोरीन इधर 1 उधर 2। ठीक है, तो बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हमें क्लोरीन को बैलेंस करना है और हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे खाली H है। एक ही प्लेस है जहाँ हम लगा सकते हैं नंबर, वो ये है ना, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या नंबर लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे 2। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 लगा दिया हमने। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया, फिर हम फिर से देखेंगे Fe1, ठीक है। एंड देन विल सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ 2 नाउ, एंड हियर ऑल्सो इट इज़ 2। ठीक है, बैलेंस हो गई। क्लोरीन ये 2 इसके लिए भी है तो 2 हो गई, और उधर भी 2 है, तो यानी एक जगह 2 लगाने से दोनों चीज़ हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। LHS RHS करेंगे तो जिंक जो है हमारा 1 1 है, हाइड्रोजन जो है हमारा 2 2 है, सल्फ़र हमारा 1 1 है, ऑक्सीजन हमारा 4 4 है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, है ना। देखिए 1 1 2 2 1 1 4 4, सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड आर इक्वल। ओके, ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ऐसा क्या चीज़ है जो केमिकल इक्वेशन हमें कन्वे नहीं करती है? सबसे पहले हमें वो कन्वे नहीं करती कि जो हमने स्टेट लिया है, फिजिकल स्टेट, वो क्या है, मतलब रिएक्टेंट्स हमारे लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में। फिर दूसरा है हमारा कंसनट्रेशन, कि अगर हम एसिड्स ले रहे हैं तो वो कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करने में, किस रेट से प्रोसीड कर रहा है, हीट गिवन आउट है या हीट टेकन इन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। देन टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या यूज़ किए हैं, क्या इफ़ेक्ट कर रहा है रिएक्शन को, ये सब कुछ भी हमारा जो रिएक्शन है वो कन्वे नहीं करती। नेचर क्या है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है,
तो वो सब हम उसको कैसे हम उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अपने केमिकल इक्वेशन को, बाय पुटिंग सम सिंबल्स. फॉर फिजिकल स्टेट वी कैन पुट S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस. फॉर एक्वस मीन्स एक्वस का मतलब इन वाटर, अगर वाटर में उसका सोल्यूशन बनाया है तो AQ लिख सकते हैं हम, ठीक है ना. देन अगर हीट एब्जॉर्ब्ड है या हीट गिवन आउट है तो वो हम प्लस और माइनस करके उसको हम लिख सकते हैं. और एग्जाम्पल में समझाऊंगी इसको. टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट कैन बी रिटन अबव द एरो. एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए. कंसंट्रेशन ऑल्सो वी कैन राइट DIL फॉर डाइल्यूट एंड CONC फॉर कंसंट्रेटेड बिफोर द फॉर्मूला. और जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम खाली एरो, एक एरो नहीं लगाएंगे. अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस तरीके का एरो लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल. एक एग्जांपल देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. रिएक्शन आपको बहुत मतलब याद कर लेनी है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये कई जगह फिट बैठती है हमारे कई एग्जाम्पल्स में. तो N2 नाइट्रोजन है, गैस है तो G लगा दिया हमने, तो पहली इन्फॉर्मेशन हमने बता दी. फिर 3H2 है, ये भी गैस है तो G लगा दिया. रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एरो लग जाएगा इस तरीके से, शोइंग दैट दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. अब ये जो अमोनिया बनी ये भी गैस है तो इसको भी हमने ब्रैकेट में गैस लिख लिया. ये जो रिएक्शन है इसमें हीट इज गिवन आउट, एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट लिख दिया, या इसकी जगह डेल्टा बना सकते हैं. हीट का सिंबल होता है डेल्टा, तो प्लस हीट प्लस डेल्टा कर दिया. तो ये हो गए आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी बताई थी. बाकी अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, हमारे कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहे हैं, तो वो हम एरो के ऊपर लिख लेंगे. इसमें इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है आपका आयरन, तो Fe के ब्रैकेट में कैटलिस्ट. मॉलिब्डेनम है प्रमोटर, तो प्रमोटर को लिख देंगे हम. और यहाँ का जो टेम्परेचर है इसका वो है आपका 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है, तो वो भी लिख दिया एरो के नीचे. और साथ में इसका कितना प्रेशर चाहिए, तो 200 से 900 एटमॉस्फेयर्स इसका प्रेशर चाहिए हमें. तो अब आप देखेंगे ये रिएक्शन हमने पूरी इन्फॉर्मेटिव बना ली है. हमने जो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में थी वो भी बता दिया, एक्सोथर्मिक बता दिया. हीट इज़ गिवन आउट है तो हमने कहाँ लिख दिया, ऑन द प्रोडक्ट साइड. फिर हमने जो कैटलिस्ट यूज़ किया है, प्रमोटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट को अच्छा काम करने के लिए मतलब प्रमोट करते हैं. तो एक्चुअली कैटलिस्ट तो हो गया जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज. एंड प्रमोटर क्या है, प्रमोटर उस कैटलिस्ट को इन्हांस करता है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट. ये हम क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. देन इस रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए वो भी मेंशन कर दिया, कितना प्रेशर चाहिए वो भी मेंशन कर दिया हमने. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने की कि एक रिएक्शन को आप कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. तो फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट इज़ क्लियर दैट द रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट अमोनिया आर गैसेस. तो पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये मिल गई. सेकेंड इन्फॉर्मेशन, चूँकि हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया था तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. फिर प्लस हीट हमने प्रोडक्ट साइड पे लगाया था तो एक्सोथर्मिक है. अगर माइनस हीट लगाते प्रोडक्ट साइड पे तो एंडोथर्मिक हो जाता. ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे हो रहा है. कैटलिस्ट आयरन यूज़ हुआ है और मॉलिब्डेनम इसमें प्रमोटर यूज़ किया है. व्हाट इज़ अ प्रमोटर, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट. अपवर्ड एरो इंडिकेट्स अ गैस एंड डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स द प्रेसिपिटेट. एग्जाम्पल देखेंगे, C+O2 गिव CO2. CO2 के आगे एरो ऊपर बनाया तो ये क्या है, गैस इसमें से निकल रही है, इवॉल्व हो रही है. तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, CO2 गैशियस फॉर्म में है तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है. और प्लस डेल्टा हीट को शो करता है. तो ये जो प्लस हीट का मतलब है कि दैट हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब दी गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंड देन माइनस हीट अगर होता, माइनस डेल्टा होता तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड यानी एंडोथर्मिक होता. अब इस रिएक्शन में देखेंगे NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट में वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है. तो प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए एरो डाउनवर्ड शो करता है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है. तो एरो डाउनवर्ड से शो करके हम बताते हैं प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. देन सोडियम नाइट्रेट के आगे नीचे एक्वस लिखा है, यानी ये वाटर के सॉल्यूशन में है. वाटर के साथ आपको मिलेगा ये NaNO3, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वाटर इज प्रेजेंट हियर.
तो इस तरीके से you can make your reaction informative. Thus we finish the chapter. In the next class, we'll discuss the question answers.